তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি ইচ্ছাময়, রাখো হে দয়াল সর্বজনে, নাশ নিত ভয়। তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি ইচ্ছাময়, রাখো হে দয়াল সর্বজনে, নাশ নিত ভয়। সবারি মন যেন তব পানে ধান, সবারি মন যেন তব পানে ধান। আরতি করি পদ প্রান্তে, নিত বন্দনা। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি দয়াময়, লোভ মোহ
দলিত তব করুণা। তুমি মুক্তি, তুমি শক্তি, শান্তি, দয়া, লোভ মোহ হোক দলিত তব করুণা। সদা ভক্তি যুক্ত রাহু চিত তব সাধনা। সদা ভক্তি যুক্ত রাহু চিত তব সাধনা। প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। প্রণাম প্রভু হে প্রণাম প্রভু হে দয়াল ঠাকুর, প্রণাম তোমার পায়। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। তুমি বিশ্বভুবন করেছ সৃজন, রেখেছ বর্ধনা। জয় গুরু। পরম পূজনীয় अंशुमान चक्रवर्ती मुंटीदा का लिखा हुआ ये भजन मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। अब तो प्रभु का नाम पाया है, नाम पाया है, जपते जपते
संवर जाएंगे। जपते जपते संवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तर जाएंगे। बैतरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है। अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते संवर जाएंगे। जपते जपते संवर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैतरनी तो तर जाएंगे। बैतरनी तो तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है। अब तो प्रभु का नाम पाया है। जपते जपते संवर जाएंगे। जपते जपते संवर जाएंगे। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम ये करतार। राम सुनो, रहीम सुनो, और सुनो तुम ये करतार। उनकी जहां में खोकर देखो, तुमको मिलेगा सब संसार। अब जब खुद घर घर आए, अब जब खुद घर घर आए, अब न हम दर दर जाएंगे। अब न हम दर दर जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, अपते जपते संवर बैतरनी तो तर जाएंगे। समाज के टुकड़े सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े सुख दुख में अब संग चल के। आओ जोड़ दे समाज के टुकड़े सुख दुख में अब संग चल के। घर मरीड़िए जीवन शरीर की धर्म सब एक है।
मजहब ने देख जहां को उनकी नजर से, देख जहां को उनकी नजर से, भेदभाव से लड़ जाएंगे, भेदभाव से लड़ जाएंगे। ठाकुर जी की नैया आई, ठाकुर जी की नैया आई, बैत तर जाएंगे। अब तो प्रभु का नाम पाया है, अब तो प्रभु का नाम पाया है, जपते जपते संवर जाएंगे, जपते 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 संवर जाएंगे। जय गुरु। ये भजन बहुत सुंदर भजन, उड़िया भजन। शून्य ब्रह्मरे पुण्य पयोधिरे जेणे बुले मोर नेत्र। पूज्य गोपबंधु दादांकर यही भजन गायापाई मते कही तांकरी कथा रक्षा करी से परम पिता निकटरे अर्पण करुछि। शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधिरे, शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधिरे, जेणे बुले मोर नेत्र। जेणे बुले नेत्र, चारि धामे सोते देखा गले मोते, चारि धामे सोते देखा गले मोते। मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ। मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ। शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधिरे, शून्य रे ब्रह्म रे पुण्य पयोधिरे, जेणे बुले मोर नेत्र। जेणे बुले मोर नेत्र, चारि धामे सते देखा गले मोते, चारि धामे सते देखा गले मोते। मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ। मो ठाकुर जीवननाथ प्रभु मो जीवन जीवननाथ।
পড়িছি অনেক গীতা ভাগবত পুরাণর পুথি কেতে বুঝি তো পারুনি তুম লীলা প্রভু জীব জগতর সাথে। পড়িছি অনেক গীতা ভাগবত পুরাণর পুথি কেতে বুঝি তো পারুনি তুম লীলা প্রভু জীব জগতর সাথে। দরদি দয়াল তব আগমনে জীবন রহিছি চেই তুষার্ত পরাণে অমৃত ধারা সরাগে যাউছি বহি তুমঠারে বন্ধা তুমঠারে বন্ধা মোর পঞ্চ প্রাণ তুমঠারে বন্ধা মোর পঞ্চ প্রাণ তুমি মো মান মহত শূন্যরে ব্রহ্মরে পুণ্য পয়োধীরে জেনে বুলে মোর নেত্র জেনে বুলে মোর নেত্র। পদ প্রান্তে আশ্রিত হই মু পারি হেবি এ সংসার জীবন আকাশু দূর হই জীব সবু দুঃখ ভয় মোর। তব পদ প্রান্তে আশ্রিত হই মু পারি হেবি এ সংসার জীবন আকাশু দূর হই জীব সবু দুঃখ ভয় মোর। তব নামে চিত রহু অবিরত তব কামে সদা লিপ্ত সংসার বন্ধন নহেউ ইন্ধন তব নামে মন তৃপ্ত সজাড়ি দেল হে সজাড়ি দেল হে অলোড়া জীবন সজাড়ি দেল হে অলোড়া জীবন তুমি মো মান মহত শূন্যরে ব্রহ্মরে পুণ্য পয়োধীরে শূন্যরে ব্রহ্মরে পুণ্য পয়োধীরে জেনে বুলে মোর নেত্র জেনে বুলে মোর নেত্র। চারি ধামে সতে দেখা গলে মোতে চারি ধামে সতে দেখা গলে মোতে মো ঠাকুর জীবননাথ প্রভু মো জীবন জীবননাথ মো ঠাকুর জীবননাথ প্রভু মো জীবন জীবননাথ মো ঠাকুর জীবননাথ প্রভু মো জীবন জীবননাথ। জয় গুরু দাদা। Very nice, Jatadhari bhai. For all of you, I'm telling Jatadhari bhai is a very busy person.
Now I think his seventh satsang he is attending today. So after this, he will move to another satsang. Many thanks, Jatadhari bhai. Really, Thank you, tear Dada. is Thank in my you. eye. This song is really meaningful. So yesterday, I attended our senior vice president of Petronas. He has got retirement. So today was the last day. So in his speech, he someone has asked, "What is your next?" He is 60 years old, and he told that rest of the life he will try to memorize Quran, and that will be best gift to his parents. So I like that one. And in this song, what the writer is telling that everywhere I'm seeing you, and I read Gita, Bhagavad, everything, but I can read, I can memorize, but if I'll not be attached to our living ideal, then that won't be give a meaningful life in this society. So to be meaningful, we should be attached to Thakur. And many thanks, Jatadhari Bhai, for Thank your you, Dada. presence. We are really obliged for your beautiful, powerful voice and listening you this ଦାଦା devotional song. ଆଜି ପୁରା ସକାଳ 6ଟାରୁ ଚାଲିଛି ଗାଇବା ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଦିନ ଯାକ। Yes, many thanks. Many thanks. May Thakur bless you. ଆଜ୍ଞା ଦାଦା। ଏମିତି ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। So, ଆଜି ଟମା he ରେଷ୍ଟ will ନାହିଁ bless ଦାଦା, you. ଟୋଟାଲି ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଆଜି, ଏବେ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୟ ଗୁରୁ। Thank you very much. Thank you very much, Jatadhari bhai. Thanks. Now the time has come, as I told already to you guys, that our beloved chief speaker of the day, Dr. Manas Misrada, whom we know as in profession, if you want to meet him in office, you will have to queuing up and to meet him because he is executive director to Coal India. That means he's a big position he's holding. And in person, he's so soft spoken and he's so lovable smile. His lovable smile makes a lot. So he came to Malaysia in 2016 Utsav, deliver his speech. And wherever he goes, a lot of people take initiations of Sisi Thakur. So I requested Manasda to deliver his speech 30 minutes, and the speech will be completely on Sisi Bodma's life story, and we'll listen because Sisi Bodma, today we are celebrating 128th birthday of Param Pujanya Sisi Bodma. So Manasda, over to you. I'll not take much time. Over to you. So we are eagerly waiting for your lovable speech. Joy Guru, Dada. जय 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 गुरु जय गुरु वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। लेट मी स्पीक इन हिंदी, ओके। परम प्रेममय परम दयाल श्री ठाकुर जी के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। लक्ष्मी माँ जगत जननी श्री बड़ोमा के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। परम पूज्यपाद श्री बौरदा के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा और निष्ठा समर्पित करता हूँ। पूज्यपाद आचार्य देव श्री बौरदा श्री दादा के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा निष्ठा समर्पित करता हूँ। पूजनीय बाबाई बाबू, पूजनीय अविन बाबू एवं ठाकुर परिवार के सभी के रातुल चरणों में मैं शतकोटि प्रणाम, श्रद्धा निष्ठा समर्पित करता हूँ। सभी को मेरा रानंदित, प्रीति नंदित, श्रद्धा नंदित जय गुरु। श्रद्धे गोपबंधु पात्रदा ने मुझे आह्वान किया है कि मैं आज इस मलेशिया के सत्संग में श्री बड़ोमा की जो
इस पर कुछ याचन करूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। गोपबंधु दा को तो मैं प्रथम बार मलेशिया में देखा, और 2006 में जैसा उन्होंने कहा, वो सही में बंधु ही एज ए फ्रेंड। और इतना अच्छा लगा, उनके घर में गया था, उनका छोटा बेटा भी बगल में बैठा था, गाल में हाथ डालकर। बहुत देर से मैं देखा था। उस समय तो बहुत चंचल था, अभी देखा कि बाबा के बगल में बहुत अच्छा से सत्संग में भाग ले रहा है। श्रद्धेय जटाधारी दा बहुत सुंदर ढंग से गाए। आप भुवनेश्वर से गाए और आपकी आवाज चारों तरफ फैल गई, मलेशिया और आसपास सब जगह फैल गई। तो मैं मलेशिया में मुझे बहुत आंतरिकता मिली, बहुत स्नेह मिला, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जगहों में भी गया, श्रद्धेय गोपबंधु दादा ने। आज जगत जननी श्री बड़ो माँ का 128वां जन्म दिवस है। जब श्री ठाकुर जी 17-18 वर्ष के थे, बहुत लोग उनके गार्जियन थे। गांव के सब लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। तो उनकी शादी निर्धारित हुई, विवाह निर्धारित हुआ। धोबदह निवासी श्री राम गोपाल भट्टाचार्य जी महोदय की सबसे बड़ी पुत्री सरोशी बाला से। और उस समय सरोशी बाला जी की उम्र 12 वर्ष थी, जिन्हें हम बड़ो माँ कहेंगे। बड़ो माँ की उम्र उस समय मात्र 12 वर्ष की थी। इतने बड़े परिवार में वो आई, पुरुषोत्तम का परिवार। सोचिए, उस समय तो कम ही लोग थे। श्री ठाकुर कहते हैं, इतने लोगों को के बीच में आकर, मेरे इतने बड़े परिवार के बीच में आकर वो कितना जल्दी एडजस्ट हो गई। उतने कम उम्र की थी। मेरी कर्ता माँ कृष्ण सुंदरी देवी, कृष्ण सुंदरी माँ बहुत शासन करती थी। बहुत डांटती थी, लेकिन बड़ों को चुपचाप सब कुछ सहन करती थी, चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। और मेरी कर्ता माँ का सारा काम पहले से कर कर रख देती थी। इससे धीरे धीरे वो कर्ता माँ की बहुत स्नेह भाजन हो गई। मेरी कर्ता माँ, जब मैं बहुत छोटा था, ठाकुर जी बोल रहे हैं एक जगह, जब मैं बहुत छोटा था तो मेरी तबीयत बहुत खराब हुई थी। तो मेरी कर्ता माँ ने कहा था कि अनुकूल की तबीयत ठीक हो जाएगी तो होरी लूट में दूंगी, बतासा लूट में दूंगी। और जिस समय मेरी शादी ठीक हुई, ठाकुर जी कह रहे हैं 7 दिनों तक वो शादी का अनुष्ठान चला, और उसी समय कर्ता माँ ने मेरे वजन का बताशा नाप करके खोरी लूट दिया। ठाकुर जी कहते हैं कि बड़ो बहू का ध्यान चारों तरफ रहता था, बड़ो बहू का ध्यान चारों तरफ रहता था। और सबके साथ वो बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। अपनी चिंता वो कभी भी नहीं करती थी। ठाकुर जी से इतना प्रेम था, उनका लगाव था कि ठाकुर जी के को जिससे किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, असुविधा नहीं, हर समय वो तैयार रहती थी। एक बार की बात है, आप जानते हैं ठाकुर जी विराट उपकारी थे, सबका मंगल चाहते थे ठाकुर जी। एक व्यक्ति आया और ठाकुर जी से बोला, बाबू मेरी बेटी की शादी है बाबू, लेकिन मेरे पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है बाबू, मुझे कुछ आप देंगे क्या? तो ठाकुर जी के पास भी कुछ नहीं था। तो वो आकर बड़ो माँ से बोले, बड़ो बहू वो कह रहा था कि उसकी बेटी की शादी होगी, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो कैसे शादी देगा? तो शिशी बड़ो माँ अंदर में गई और अपना जो भी गहना पहनी हुई थी वो खोल ली, और जो भी गहना था एक पोटली में बांध करके लाई। तब तक ठाकुर जी कहीं और चले गए थे। उसके पास, उस व्यक्ति के पास में शिशी बड़ो माँ आकर बोली कि ये ले लो। वो बोले, माँ इसमें क्या है? बोला, इसमें मेरा गहना है, शादी का भी गहना है, तुम इसको किसी सोने के दुकान में बंधक रख दो, गिरवी रख दो, और उससे जो पैसा मिलेगा उससे तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। वो बहुत घबरा गया। वो बोला, माँ ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपका गहना वो भी मैं बंधक देकर, ठाकुर जी तो गुस्सा करेंगे। बोले, नहीं नहीं, मैं ठाकुर जी को बता दूंगी, तुम इसे ले जाओ, किसी को बताना मत। वो
गहना लेकर शादी उदी ये सब हुई। और कर्तमा ने जब देखा कि हाथ में अंगूठी भी नहीं है, गला में हार भी नहीं है, कान में दुल भी नहीं है बड़ो माने बड़ो माँ के इसमें, तो वो बहुत गुस्सा करने लगी। कहाँ खो दी है, क्या है, वो है, सब कुछ बड़ो माँ एकदम से सहन करती रही। और जब कुछ महीने बीत गए तो वो आदमी लौट कर आया, वो पोटली में वही गहना लेकर आया था। तब सीसी बड़ो माँ अंदर में कुछ काम कर रही थी। जब वो आदमी आया तो कौरता माँ वहां पर खड़ी थी। कौरता माँ से वो पूछा, बड़ो माँ कहाँ है? वो बोली, क्या बात है, बड़ो माँ को क्यों खोज रहे हो? बोलो, नहीं, बड़ो माँ ने ये दिया था, वो मुझे लौटाने के लिए मैं आया हूँ। बोला, क्या लौटाने आए हो, दिखाओ। वो जब पोटली खोला तो उसमें सारा बड़ो माँ का गहना था। कौरता माँ बोला, ये तुम्हें मिला कैसे? तब वो सब कुछ बताया। तो उस समय कौरता माँ को समझ में आया कि किस तरह से ठाकुर जी के एक बात पर सीसी बड़ो माँ ने अपना सारा गहना उस व्यक्ति को दिया था जिसकी पुत्री की शादी नहीं हुई। सीसी बड़ो माँ ठाकुर जी का बहुत ख्याल रखती थी, बहुत ख्याल रखती थी। इतना ख्याल रखती थी, एक दिन ठाकुर जी ने देखा कि सीसी बड़ो माँ सारा चावल को निकाल कर एक एक दाना को चुन कर अलग कर रही है। ठाकुर जी ने पूछा, बड़ो बो की করছো এটা, ये क्या कर रही हो? तो सीसी बड़ो माँ बोली कि कल जब आप भात खा रहे थे तो आपके मुंह के अंदर एक छोटा सा कंकर घुस गया था, जिसके कारण आपको खाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। इसलिए मैंने ये पूरा चावल को ये करके इसमें मैं चुन रही हूँ, जिसमें एक भी कंकर नहीं। सोचिए, कहाँ बड़ो माँ बैठी हैं, कहाँ ठाकुर जी बैठे हैं, ठाकुर जी के मुंह के अंदर में एक कंकर गया है चावल के साथ, उसका भी ध्यान बड़ो माँ रखती थी। सुबह में बहुत जल्दी उठ जाती थी, स्नान करके ठाकुर जी के लिए पान बनाती थी। 40 किली 50 किली पान सुबह में बनाना पड़ता था, सुबह में बनाती थी। ठाकुर जी को जो खाने की इच्छा होती थी, सीसी बड़ो माँ सब कुछ समझ जाती थी। एक बार ठाकुर जी बोले कि कांठालेर डालना बनाओ बड़ो बो, कांठालेर डालना बनाओ, कटहल का डालना बनाओ। तो कटहल का तो सीजन था ही नहीं उस समय, कहाँ से कटहल आएगा? लेकिन ठाकुर जी अपने श्रीमुख से बोले हैं कटहल की सब्जी वो खाएंगे। तो सीसी बड़ो माँ ने पार्षदों को बोला कि जाओ देखो, ঠাকুর কাঁঠালের ডালনা খেতে চেয়েছেন, যাও দেখো কোথায় কাঁঠাল পাওয়া যায়। सब लोग देवघर बाजार इधर उधर घूमना शुरू किए, कहीं कटहल नहीं मिला। तो आश्रम में ही एक कटहल का पेड़ था। सीसी बड़ो माँ भी निकली खोजने के लिए। खोजते खोजते उस कटहल के पेड़ में, बहुत सारा कटहल का पेड़ था, लेकिन एक कटहल के पेड़ में खूब ऊपर में एक छोटा सा कटहल अभी भी था। सीसी बड़ो माँ उसको तुड़वाई और ठाकुर जी के लिए कटहल का डालना बना कर दी। ठाकुर जी जब कलकत्ता में मेडिकल पढ़ाई पढ़ने गए थे, उस समय सीसी बड़ो माँ तो यहीं पर थी, पाबना हिमायतपुर में थी। और ठाकुर जी बहुत पत्र लिखते थे, बड़ो माँ को बहुत पत्र लिखते थे। और उन पत्रों में जीवन में किस तरह से चलना है, किस तरह से घर द्वार संभालना है, किस तरह से परमपिता का काम करना है, सब कुछ उन पत्रों में ठाकुर जी लिख ठाकुर जी उन पत्रों में सब कुछ लिखे। दादा आप म्यूट हो गए, दादा आप म्यूट हो गए। हाँ, उस समय अभी ठीक है दादा? अभी सुनाई पड़ रही है दादा? यस यस यस, हाँ हाँ हाँ। ठाकुर जी, उस समय मैं मेडिकल की पढ़ाई पढ़ता था और कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती थी कि सियालदह में सोना पड़ता था, स्टेशन में सोना पड़ता था। मेरे पिताजी से एक व्यक्ति ने कुछ रुपया लिया था, हर महीने वो वापस करेंगे 10 रुपया करके, वो रुपया आता नहीं था। मुझे हॉस्टल से, बोर्डिंग रूम से निकाल दिया गया। मैं कुली लोगों के साथ, एक कोयला गोदाम के, मिश्री गोदाम के कुलियों के साथ में रहता था। ठीक से खाना नहीं मिलता था। बहु बाजार से लेकर मुरारीपुर तक जाना पड़ता था, मानिकतला जाना पड़ता था। हर दिन 10 मील चलता था मैं, पैसा नहीं था, ट्राम में चढ़ने का, टिकट कटाने का पैसा नहीं था। जो कभी कभी तो दिन भर भूखे रह जाना पड़ता था।
जाड़े में ओढ़ने के लिए कंबल तक नहीं था और एक ही शर्ट था, वो भी शर्ट में धूल लग जाती थी तो उसको धोकर मैं सुखाता था और सुबह पहनता था। रात में जब बहुत ठंड लगती थी तो खूब नाम करता था, खूब नाम करता था। पैर में पहनने का जूता नहीं था, माथे में लगाने के लिए तेल नहीं था, किरासन तेल की व्यवस्था नहीं होती थी। रोड साइड में बैठकर मैं किताब, मेडिकल की किताब पढ़ता था। उस समय मेरी ऐसी स्थिति थी। तब मैं एक चैटर्जी बाबू थे, उन्होंने मुझे महेश चंद्र भट्टाचार्य जी की एक किताब दी थी और 24 सीसी का दवाई का ये दिया था, होम्योपैथी का। उससे मैं कुली लोगों की मैं सेवा करता था, उससे जो कुछ मिलता था उससे ही मैं किसी तरह से अपना काम चलाता था। इस तरह से ठाकुर जी बोल रहे हैं। और जब छुट्टियां होती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि अब मैं माँ के पास में जाऊंगा, अब मैं माँ के पास में जाऊंगा, वहां अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन जब मैं माँ के पास आता था तो गांव के अगल बगल पड़ोसी लोग कहते थे कि देखो अनुकूल को ज्यादा दिन यहाँ मत मत रोकना, क्योंकि उसकी तो अब थोड़ी दिनों पहले, वर्षों पहले शादी हुई है, वो तो मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहा है, यहाँ पर रहेगा तो उसको उसको रखना ठीक नहीं है, जल्दी यहाँ से भेज दो, नहीं तो उसका पढ़ाई ठीक नहीं हो पाएगी। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं मैं ठीक से छुट्टियों के दिन में रह भी नहीं पाता था अपने घर में, वापस मुझे कलकत्ता आना पड़ता था। श्री ठाकुर जी बड़ोमा के बारे में बोले हैं कि बोलो तो बड़ोमा के बारे में तुम लोग क्या जानते हो। एक बार जति आश्रम में ठाकुर जी पूछ रहे हैं भक्तों से, तो भक्त लोग चुप हैं। ठाकुर जी बोले जानते हो अगर मैं नारी रूप में जन्म लेता, तो अगर मैं नारी रूप में जन्म लेता तो मेरा स्वरूप बड़ोमा का ही होता। वो सती साध्वी नारी है। वो लिखे हैं कि बड़ो बहू तुम सती साध्वी नारी हो, तुमसे मुझे बहुत कुछ सीखना है। श्री ठाकुर जी कहते थे कि जो स्त्री, जो पत्नी अपने पति को देव तुल्य समझकर, देव सेवा समझकर सेवा करती है, सचमुच वही देवी होती है। और मैं बहुत सौभाग्यवान हूँ कि श्री बड़ोमा वधु रूप में मुझे मिली है। श्री ठाकुर जी कहते थे कि अगर बड़ो बहू नहीं होती तो मैं कैसे रहता, मेरा जीवन इतना निरुद्वेग नहीं होता, मेरा जीवन इतना निरुद्वेग नहीं होता। एक बार ठाकुर जी जामतला के आंगन में एक घर बनवाए थे और वहां पर एयर कूलर लगाया गया, ह्यूमिडिफायर लगाया गया। उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, दाहिने तरफ का जो पोर्शन था ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो गया। कलकत्ता से बड़े बड़े डॉक्टर आए, बड़ोमा भी दौड़ करके आई और 42 दिनों तक एक स्टूल में बैठकर वो हमेशा ठाकुर जी के पास में रही और 42 दिनों तक श्री बड़ोमा ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 42 दिनों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। श्री बौरदा के बहुत कहने पर वो थोड़ा सा नींबू पानी रोज पीती थी और जब ठाकुर जी स्वस्थ हो गए तो बड़ोमा निश्चिंत हुई। बड़ोमा बहुत कम बोलती थी, बहुत गंभीर थी, लेकिन चारों तरफ उसका ध्यान था। एक बार मुखर्जी पार्क में ठाकुर जी रह रहे थे और छोटा छोटा सा एक कमरा था जिसमें बड़ोमा रहती थी और एक त्रिपाल का बड़ा सा पंडाल बनाया गया था जिसमें ठाकुर जी बैठते थे और वहीं पर बिछावन लगाकर उनके सोने की व्यवस्था होती। और जाड़े का समय था, एक गुरु भाई पटना से वहां पर गए हुए थे। उस जाड़े की रात में जब वो गुरु भाई बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ठाकुर जी के तंबू के चारों तरफ एक महिला घूम रही है। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, ये महिला कौन है, रात के समय ठाकुर जी के तंबू के चारों तरफ घूम रही है। जब वो पास में गए तो उन्होंने देखा कि वो श्री बड़ोमा है, क्योंकि अगल बगल बहुत जंगल था, अगल बगल बहुत जंगल था और ठाकुर जी के जो सेवक थे वो भी उतने जाड़े की रात में अपने अपने जगहों में जाकर सो गए थे और श्री बड़ोमा उस तंबू के चारों तरफ ठाकुर जी को पहरा दे रहे थे। इस तरह से ठाकुर जी को वो समझती थी। घुटने का ऑपरेशन हुआ, लेकिन उस अवस्था में भी चेयर पर बैठकर ठाकुर जी के लिए वो भोग रान्ना करती थी। और उसी क्रम में उनके पैर के पास वो कढ़ाई उतारने में जल गया, लेकिन ठाकुर जी से उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि ये सुनने से ठाकुर जी को दुख होता। भूलकर श्री बड़ोमा ने उस दुख को भी झेल लिया। एक बार बड़ोमा का कॉलर बोन टूट गया। जब कॉलर बोन टूट गया
तो डॉक्टर धीरेन भट्टाचार्य जी दादा आए और श्री बड़ोमा से बात कर रहे हैं, कॉलर बोन का वो जगह देख रहे हैं। तो ठाकुर जी अंदर में बैठे हुए हैं। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बड़ो बऊ के एसेछे, बड़ो बऊ कौन आया है? तो श्री बड़ोमा कह रही हैं, धीरेन आया है, धीरेन आया है। उसके बाद वो श्रद्धे धीरेन्द्र को बोले कि अभी जब आप ठाकुर जी के पास में जाइएगा तो ये नहीं बोलिएगा कि मेरा कॉलर बोन टूट गया है, मेरा कॉलर बोन टूट गया है। आप बोलिएगा मैं बड़ोमा को प्रणाम करने आया था, आप मुझे प्रणाम करने आए थे, आप यही बोलिएगा। अगर आप बोलिएगा मेरा कॉलर बोन टूट गया है तो ठाकुर जी को बहुत दुख होगा, ठाकुर जी बहुत चंचल हो उठे। ऐसी थी श्री बड़ोमा। मानिकतला के एक 2 तल्ला घर में एक बार वहां पर ठाकुर जी अवस्थान कर रहे थे और उस समय भूकंप आया, अर्थक्वेक आया। जब अर्थक्वेक आया तो ठाकुर जी भी नीचे उतर गए, सब लोग नीचे उतर गए, लेकिन श्री बड़ोमा 2 तल्ला के घर में खड़ी रही और वहाँ जो खिड़की का सिक होता, विंडो का जो लोहा का सिक, उसको खड़ा करके देख रही है। सभी लोग नीचे से बोल रहे हैं, माँ आप जल्दी उतर आइए, जल्दी उतर आइए, भूकंप आ गया है, भूकंप हो रहा है। और श्री ठाकुर जी भी बोले कि बड़ो बऊ ताड़ाताड़ी नेमे एसो, ताड़ाताड़ी नेमे एसो, भूमिकंप होच्छे। लेकिन श्री बड़ोमा एकदम से नहीं घबराई। जब भूकंप शांत हो गया तो ठाकुर जी जब पूछे कि तुम्हें भय नहीं लगा, तो श्री बड़ोमा बोली कि भय क्यों लगता, आप तो थे। बोले नीचे क्यों नहीं आई? तो श्री बड़ोमा बोली कि इस घर में आपका कितना सामान है, आपका इस घर में कितना सामान है। अगर मैं नीचे चली जाती और ये घर गिर जाता तो सारा सामान नष्ट हो जाता है। इसलिए मुझे विश्वास था कि अगर मैं यहाँ पर रहूंगी और आप तो हैं ही, तो फिर भूकंप से भी इस घर का कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए कितना कॉन्फिडेंस, कितना विश्वास, कितना विश्वास। सबको बहुत प्यार करते थे। देखिए ठाकुर जी का परिवार तो जो है वो था, इतने हजारों हजार लोग आते थे, हजारों हजार लोग आते थे। उनकी सुख सुविधा सब चीज की दृष्टि श्री बड़ोमा रखती थी। और जो भी माताएं आती थी बड़ोमा के पास में, उनसे इतना अच्छा व्यवहार करती थी। अगर किसी की शादी होती थी आश्रम में और वो जब नववधु को लेकर आता था तो बड़ोमा बहुत खुश होती थी, बहुत प्रसन्न होती थी। उसका घूंघट थोड़ा उठाकर उसको बहुत प्यार करती थी और उससे इतना अच्छा से बात करती थी कि वो नववधु को लगता था कि बाप रे, मैं कहाँ पर, किनके सामने मैं खड़ी हूँ, इतना मुझे ये प्रेम दे रही है, इतना प्रेम दे रही है, इतना प्रेम करती थी वो। और सभी के मनोकामना की पूर्ति श्री बड़ोमा करती थी। एक बार श्री प्रमथ चंद्र व्यापारी दादा आसाम से आए अपनी पत्नी को लेकर। बहुत दिनों वर्षों पहले उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी कोई संतान इत्यादि नहीं थी, कोई संतान नहीं थी। दीक्षा लिए थे ठाकुर जी की, वो दीक्षा लिए थे। तो किसी ने कहा था कि आप ठाकुर जी की दीक्षा लिए हैं, जाइए ना ठाकुर जी के पास में, अपने मन की व्यथा पर बताइए। तो वो एक बार देवघर में आए हैं, ठाकुर जी के पास में आए हैं, लेकिन वो उनके घर की माँ भी प्रणाम कर रही हैं, वो भी प्रणाम कर रही हैं, लेकिन वो अपनी समस्या के बारे में बोल नहीं पा रहे हैं, कैसे बोलेंगे। तब ठाकुर जी बोले, जाओ बड़ो माँ के प्रणाम करे एसो, बड़ो बहू के प्रणाम करे एसो। तब वो लोग चलने लगे। बड़ो माँ तब अभी जो भोग का घर है वहां एक छोटा सा घर था, रूम था, उसी में बड़ो माँ रहती थी। छोटा सा बरामदा था, छोटा सा किचन था, छोटा सा रूम था, उसी में बड़ो माँ रहती थी। जब वो श्रद्धे व्यापारी दा अपने श्रीमती जी को लेकर वहां पहुंचे तो वहां से बड़ो माँ बोल रही है, एसो रघुर माँ एसो, एसो रघुर माँ एसो, आओ रघु की माँ आओ, रघु की माँ आओ। वो अगल बगल वो दादा देख रहे हैं और वो माँ देख रही है कि कोई रघु की माँ आ रही है क्या, ये तो रघु की माँ को बुला रही है। तब श्री बड़ो माँ समझ गई, बोले नहीं, मैं तुम्ही को बुला रही हूँ, आओ रघु की माँ आओ। सोचिए वो मनोवासना मनोकामना लेकर आई है कि पुत्र संतान आदि हो, और श्री बड़ो माँ पहले ही कह दिए आओ रघु की माँ आओ। और आशीर्वाद पाकर वो लोग आसाम लौट गए।
उसके कुछ ही वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उन्हें एक बेटा हुआ, सन, ही गॉट ए सन। उसको लेकर ठाकुर जी के पास में आए नामकरण करने के लिए। नामकरण करने के लिए ठाकुर जी मुस्कुराकर बोले रघुनंदन, रघुनंदन। देखिए सीसी बड़ोमा 2-3 वर्षों पहले ये पुकारी थी रघु की माँ, रघु की माँ। ठाकुर जी तो दूर में थे, कहाँ सुने थे वो। लेकिन जब ठाकुर जी से नाम प्रार्थना की गई तो ठाकुर जी ने कहा रघुनंदन, रघुनंदन। इस तरह से वो श्री श्री ठाकुर जी की वो सेवा करती थी। एक बार जब ठाकुर जी देवघर में आए थे तो उस समय भी गांव के लोगों को और आश्रम वासी पहरा देते थे घूम घूम कर। परिस्थिति ठीक नहीं थी, सबके पास एक एक लाठी रहती थी, एक एक टॉर्च रहता था। उस समय भी रात के समय 2 बजे सीसी बोड़ोमा निकलती थी और चारों तरफ आश्रम में घूम घूम कर देखती थी, घूम घूम कर देखती थी। एक 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 जो नाइट सिक्योरिटी गार्ड वो सो गया था, बगल में उसकी लाठी पड़ी थी, टॉर्च पड़ी थी। सीसी बोड़ोमा वो लाठी को ले ली, टॉर्च को लेकर आ गई। और उस समय का नियम था कि प्रत्येक दिन सुबह में वो जो गार्ड होता था वो अपने जो ये अधिकारी हैं उनके पास में, जो इंचार्ज हैं सिक्योरिटी के, उनके पास में वो लाठी जमा करेगा, उनके पास वो टॉर्च जमा करेगा। सुबह जब उसकी नींद टूटी तो देखा ना लाठी है, ना टॉर्च है, न लाठी है, न टॉर्च है। तो वो समझ गया कि जरूर सीसी बोड़ोमा आई होंगी और मैं तो सो गया था और ये लाठी और टॉर्च लेकर वो चली गई होगी। वो सीसी बोड़ोमा के कमरे के सामने आकर खूब जोर जोर से रोने लगा, खूब जोर जोर से रोने लगा और अपना सर पटकने लगा बरामदे पर। तब सीसी बोड़ोमा आई, बोली क्या हुआ? बोले मेरी लाठी दे दीजिए, मेरा टॉर्च दे दीजिए, नहीं तो मेरे को ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। सीसी बोड़ोमा बोली तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास लाठी है और टॉर्च है तुम्हारा? बोला नहीं, मेरे को मालूम है कि मैं सो गया था और आप जरूर आई होंगी और वो लाठी टॉर्च आप ही रख दी होंगी। अब माँ मुझसे ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा क्षमा याचना वो किया। तब सीसी बोड़ोमा बोली कि देखो यहाँ पर ठाकुर जी रहते हैं, यहाँ ठाकुर जी रहते हैं और तुम लोग पहरा का काम करते हो, तो पहरा कर देते समय कभी सोना मत, पहरा देते समय कभी तुम सोना मत। इस तरह से ठाकुर जी शाम के समय जाकर बोड़ोमा के पास बैठते थे और उस समय शिष्य बोड़दा भी आते थे और दूर से खड़े होकर लोग देखते थे। लोग सोचते थे कि ठाकुर जी कितना अच्छा से बात कर रहे हैं, कितना अच्छा से बात कर रहे हैं। देखिए जो पूरे जगत के स्वामी हैं, उस समय वो पूरी तरह से संसारी लगते थे। एक बार सीसी बोड़ोमा को थोड़ी सर्दी खांसी हुई है, ठाकुर जी बैठे हैं पार्लर में और उस समय हर दिन शाम में सीसी बोड़दा आते थे माँ के पास में। ठाकुर जी दूर से देख लिए, उन्होंने एक भक्त के से कागज मंगवाया और उसमें लिख दिया कि बड़ो खोका तुम्ही आज माয়ের কাছে যেও না, মায়ের सर्दी হয়েছে, ইনফেকশন হয়েছে। तब जब सीसी बोड़दा को वो कागज मिला तो वो नहीं गए। तो ठाकुर जी हंसकर बोले कि अभी बड़ो खोका वहां पर जाता और जाकर माँ के गोद में माथा रखकर फिर बात करता। तो देखिए कितना ध्यान था उनका, उनका कितना ध्यान था। एक दिन श्री ठाकुर जी बोड़दा के पेट में हाथ डालकर बोले बड़ो खोका तुम्हार पेटটা খুব বড় হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, पेटটা খুব বড়, बड़ो खोका तुम्हारा पेट तो थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो सीसी बोड़दा बोले माँ इतना खिलाती है कि मेरा पेट बड़ा हो गया है। तो ठाकुर जी हंसने लगे, बोले বড় বউ আমাকেও খুব খাওয়ায়, আমাকেও খুব খাওয়ায়, सब समय बोले এটা খেতে হবে, এটা খেতে হবে। आश्रम वासियों के लिए, सबके लिए वो सीसी बोड़ोमा थी। जब ठाकुर जी की माँ माता मनमोहिनी देवी इस संसार से चली गई तो पूरा आश्रम क्रंदन में आकुल हो गया। ठाकुर जी भी क्रंदनशील हो गए, कितने दिनों तक वो रोते रहे। और एक दिन सीसी बोड़ोमा, बहुत सारे लोग थे उसमें, ठाकुर जी ने कहा कि मेरी माँ तो चली गई, मेरी माँ तो गुजर गई है और आश्रम के इतने लोग, मैं मातृहारा हो गया, मैं मातृहारा हो गया हूँ। आश्रम के इतने लोग भी मातृहारा हो गए हैं। आज से
तुम इन लोगों की माँ हो, आज से तुम इन लोगों की माँ हो, ठीक है। और तुम इस परिवार की अब वधू नहीं हो, इस परिवार की अब वधू नहीं हो, तुम इन सबों की माँ हो। इस तरह से ठाकुर जी शिशि बड़ोमा को उस दिन के बाद से सभी लोग शिशि बड़ोमा कर कर उनको पुकारने लगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के लिए शिशि ठाकुर जी के लातूर चरणों में मंगल प्रार्थना करता हूँ। और हम लोग ठाकुर जी को पकड़े हैं, हमारे आचार्य देव हैं। आचार्य देव की बात अगर सत्संग में ना कहो तो ये भी ठीक नहीं है। जब पूजनीय बाबाईदा वो दीक्षा अभियान में निकले थे तो सभी लोग ये कह रहे थे कि पूजनीय बाबाईदा दीक्षा में निकले हैं, पूजनीय बाबाईदा दीक्षा परिक्रमा में निकले हैं। लेकिन आचार्य देव पूज्यपाद दादा बोले तीनी वेरिएशन, तीनी वेरिएशन, तीनी माने उन्हें वो मीन करना चाह रहे थे कि ठाकुर जी ही निकले हैं। जब शिशि पूजनीय बाबाईदा का जन्म हुआ था और शिशि बॉर्दा जब देखने गए थे पूजनीय बाबाईदा को, तो पहला शब्द उनके मुंह से निकला था, श्रीमुख से निकला था पूज्य शिशि बॉर्दा का, बाबाई तो, बाबाई तो, यानी ये मेरे बाबा ही हैं, ये मेरे बाबा ही हैं। उनके बाबा कौन थे? शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी चक्रवर्ती जी, बाबाई तो उनकी, इसलिए उनका नाम बाबाई पड़ा। पूज्यपाद आचार्य देव भी कहते थे कि वो बाक सिद्ध पुरुष हैं। पूजनीय बाबाईदा के बारे में बोले वो बाक सिद्ध पुरुष हैं, उनकी बातों को तुम लोग मानकर चलना, वो जो बोल देंगे वो होगा। अगर इस जन्म में भी ना होगा तो दूसरे जन्म में भी वो उसका मंगल होगा, इसलिए उनको सामने लेकर के चलना। हम लोग परम सौभाग्यवान हैं कि ठाकुर जी की दीक्षा मिली है और ठाकुर परिवार आचार्य देव, पूजनीय बाबाईदा, पूजनीय सिपाहीदा सब लोग हैं हम लोगों के साथ। जय गुरु, जय गुरु दादा। मनादा जय गुरु। मेरा वाक्य नहीं है आपका जाजन सुन के क्या बोलूं। आप तो हमेशा यू आर ए वेरी गुड ओरेटर विथ लॉट ऑफ डिवोशन। जो ठाकुर जी को प्यार करते हैं, ठाकुर जी का बात हमेशा बोलते हैं। आपको देख के बहुत कुछ लोग सीखते हैं, क्योंकि आपका अंदर में वो आचार्य परंपरा का जो शक्ति बह रहा है। सो दैट इज व्हाट द main point. You told many things about Sri Bodoma. Many thanks, Dada. Such a high knowledgeous person. Be present with little people and little gather from Malaysia and Singapore, Guru brothers. We are obliged, praying Lotus feet of Sri Thakur for your well-being. Jai Guru Dada, Jai Guru. So कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए आज जो माँ ने गोपाभूति पलाशदा जो आज इस सत्संग आयोजन किए हैं, आज दैट टू वी आर सेलिब्रेटिंग 128th बर्थडे ऑफ परम पूजनीय शिशि बड़ोमा. So I was thinking this song. Gopabodhi is a very good singer, very classical good singer. We like her song. Without her song, the satsang cannot be fulfilled. So that's why I am requesting our beloved mother Gopabodhi to perform a song. Bodhi, Jai Guru. জয় গুরুদেব। Jai Guru. Jai Guru. একটা কীর্তন করছি, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ পুরো ক্লিয়ার বুদ্ধি, ক্লিয়ার। মনে ভাই বল হরি বল, মনের আনন্দে ভাই বল হরি বল, জনমে জনমে সুখে বল হরি বল, জনমে জনমে সুখে বল হরি বল, মানব জনম পে ভাই বল হরি বল, মানব জনম পে ভাই বল হরি বল,
हरि बोल, बोल 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 हरि बोल। मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल, मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल, जनमे जनमे सुखे बोल हरि बोल, जनमे जनमे सुखे बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। मानव जन्म के भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म के भाई बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। गृहे थाको बने थाको बोल हरि बोल, गृहे थाको बने थाको बोल हरि बोल, असत संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, असत संग छाड़ी भाई बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, संपदे विपदे भाई बोल हरि बोल, कृष्णेर संसारे থাকি बोल हरि बोल, कृष्णेर संसारे থাকি बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। वैष्णव चरणे पड़ी बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल, मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल, मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल, मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल। मानव जन्म के भाई बोल हरि बोल, मानव जन्म के भाई बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, सुखे थाको दुखे थाको बोल हरि बोल, 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 बोल हरि बोल। हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि बोल। मोनेरो आनंदे भाई बोल हरि बोल। Joy Guru. Joy Guru. Joy Guru. Very nice. Many thanks, Bodhi. Very nice kirtan. It was well presented. God bless Rita Prabhu. Nice. দাদা Rolak. আমরা কিছু একটা বলি দাদা একটু। বলেন হ্যাঁ 2 মিনিট। ঋতপ্রভা, হ্যাঁ 1 মিনিট। জয় গুরু all.
we feel really blessed to get this chance to offer our prayers to Shri Thakur Anukul Chandra and Shri Boroma on this occasion of the birth anniversary of Shri Boroma. I would like to thank Gopa Uncle for organizing this beautiful satsang, and I'd also like to thank all of you for joining today. I feel really lucky to have heard such beautiful songs from my brothers and sisters, and also the very beautiful Jajan. I feel very lucky to be part of this family, to be part of this satsang that always motivates me to walk on the right path in life. So thank you all again. Jai Guru. Jai Guru. Very nice, very nice. Rita Pro, since from childhood, I remember without inviting, I've never invited Gopa Budi to attend satsang, but she comes voluntarily to home, attend the satsang. So that is the greatness. Your mother, which is translated to you, obviously, Harpalada, all credit goes to them, and you are just actor. Directors are parents. So Thakurji always loves his parents. So I pray Lotus Precious Thakur, your love day by day it increase towards them and make them happy. And this auspicious day, and your result has declared, I am so happy to know this. Thakur will bless you. Definitely, wherever you go, this environment will follow you if you love your parents. Trust me. Jai Guru, Vande Purushottam. Very nice. We are also blessed. So, okay, now the time we have already reached. So I would request Bapaditya to do dhoni. Bapaditya, acho tumi? जय गुरु दादा Jai Guru, dhoni dao. वंदे पुरुषोत्तमम Vande Purushottamam. वंदे पुरुषोत्तमम Vande Purushottamam. वंदे पुरुषोत्तमम Vande Purushottamam.